ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی ہے، جس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی ملکی اور داخلی خارجی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ کمیٹی اجلت میں کیے گئے بھارتی ناقابل عملی اور آبی اقدامات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اس پر غور بھی کیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی بھارتی اقدامات کا مؤثر جواب دے گی۔ کچھ دیر بعد اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بھارتی اقدامات کے خاطر خواہ جواب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے جو معاملات اٹھائے ہیں ان پر اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد ملکی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری تھا، جس میں تینوں سروسز چیفز اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات بھی منظور کر لی گئی ہیں، جبکہ ذرائع کا مزید یہ بتانا ہے کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس جاری تھا۔ تینوں سروسز چیفز اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی ملکی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ دہلی کی جانب سے اچانک ویزا اسسٹنس اسکیم کی منسوخی اور پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کے حکم نے دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کو ایک نئی سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔ ویزا اسکیم کی معطلی کے بعد انڈیا میں موجود پاکستانی شہریوں نے واپسی کی راہ لے لی۔ دہلی، ممبئی اور دیگر شہروں سے لوگ تیزی سے اٹاری سرحد کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ایسے بھارتی شہری جو پاکستان میں موجود ہیں انہیں بھی 1 مئی تک وطن واپسی کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اٹاری واہگہ سرحد پر وطن واپسی کے منتظر پاکستانی شہریوں کی آنکھوں میں بے یقینی اور دلوں میں بے چینی ہے۔ اٹاری واہگہ بارڈر کی بندش نہ صرف انسانی روابط کو متاثر کر رہی ہے بلکہ سرحد پار تجارت پر بھی اس کے اثرات پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ انڈین شہری بھی اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے پہلگام حملے کو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے بھارتی میڈیا کے رویے پر تنقید کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس نے کہا کہ بھارت کا فاشسٹ میڈیا بغیر ثبوتوں کے پاکستان پر الزامات دھر رہا ہے۔ پہلگام حملہ مقبوضہ کشمیر کے 400 کلومیٹر اندر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پر کسی قسم کے حملے کی کوشش ہوئی تو 2019 میں ابھینندن کو چائے پلا کر بھیجا تھا، اب بسکٹ بھی کھلائیں گے۔ آرمی چیف نے اوورسیز کنونشن میں واضح کیا تھا کہ پاکستان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے کہا کہ پہلگام حملہ بھارت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ سوشل میڈیا پر حملے کے فوراً بعد پاکستان پر الزام دھرا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی میڈیا بھی ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوا تو بالا کوٹ کی طرح سبکی اٹھانا پڑے گی۔ پہلگام میں سیاحوں پر حملہ افسوسناک ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ شواہد کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس پر بھارت کی جانب سے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا۔ بھارتی حکومت کے پاکستان مخالف اقدامات غیر دانشمندی کے عکاس ہیں۔ سنتاس معاہدہ عالمی بینک کے ثالثی میں ہوا۔ طویل عرصے سے بھارتی حکومت سنتاس معاہدے سے انحراف کی بات کر رہی تھی۔ بہتر ہوتا بھارتی حکومت الزام تراشی کے بجائے پاکستان کو شواہد پیش کرتی۔ تنازعات کا حصہ رہتے ہوئے پائیدار ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیرینہ تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔
सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। भारत कई साल से सिंध ताश मुआहदे से इनराफ की कोशिश कर रहा है और दहशतगर्दी के वाक़े को पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का सिंध ताश मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी पर एक्स पर पैगाम। कहा, सिंध ताश मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुआहदे में तरमीम और नई शिकें डालने का तरीक़ाकार भी दर्ज है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि सिंध ताश मुआहदे को भारत की तरफ से जल्दबाजी में मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत का ये इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। हर कतरे पर हमारा हक है। कानूनी, सियासी और आलमी सतह पर पूरी ताकत से उसका दफा करेंगे। मुआहदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। किसी भी जारियत का माजी की तरह मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि इंडिया का झूठा फरेबी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पहले बाकी सब बाद में, हम सब मुत्तहिद हैं। नेशनल एक्शन प्लान का इजलास फौरी बुलाया जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों के लीडरान समेत तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। पूरी दुनिया को ये जवाब मिले कि पाकिस्तान के आगे सियासी इख्तलाफात कुछ नहीं और पूरा पाकिस्तान और कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मनों के सामने खड़ी है। इंडिया के झूठ और फरेब की बुनियाद पर कोई एक्शन हुआ तो हमेशा की तरह भरपूर ख़तरनाक रिएक्शन दिया जाएगा। मोदी सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के जारहाना रवैये को अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया गया। ये वाक़या खुद भारतीय हुकूमत की नाकामी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर भारत ने इस वाक़े की आड़ में कोई इक़दाम उठाया तो उसे भारतीय कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में अहम मुलाकातें हुई हैं जिनमें मुल्की मईशत, सियासत, अवामी मसाइल और हुकूमती कारकर्दगी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है। बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से माहिर मईशत केसर बंगाली ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क को दरपेश माली चैलेंजेस, महंगाई, बेरोज़गारी और तरक्याती मनसूबों पर खुलकर बातचीत हुई है। केसर बंगाली ने मुआशी बेहतरी के लिए तजावीज़ दी जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई हैं। इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से रुकन कौमी असम्बली एजाज झाकरानी ने भी मुलाकात की जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत मखदूम फ़खरुज़्ज़मान ने अपने हल्के के अवामी मसाइल और तरक्याती इक़दाम से आगाह किया। सूबाई वज़ीर बराए मेहनत शाहिद तहीम ने भी पार्टी क़यादत से मुलाकात में महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी और मेहनत कश तबके के लिए जारी मनसूबों पर रोशनी डाली। बिलावल हाउस में होने वाली ये मुलाकातें न सिर्फ पार्टी पॉलिसीज़ के तसलसल का मज़हर हैं बल्कि इस बात का इंदिया भी देती हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क की मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने की भारतीय इक़दाम की शदीद मसम्मत की। अपने एक बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली खुली जारियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत की जानिब से इस मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों और अहम मौक़ों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफियों से हटाई जा सके। सदर क्लिंटन के दौरा भारत के दौरान भी भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बेगुनाह सिखों का खून बहाया। आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब को पाकिस्तान के मौशी अशारियों हालिया फिच की तरफ से खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और हुकूमत की निजकारी के एजेंडे से आगाह किया। LOC पर 2 दहशतगर्द हलाक करने का भारतीय झूठ बेनकाब हो गया। 23 अप्रैल 2025 को LOC के इलाके सिरजौर में 2 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। सिरजौर के मकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। सिरजौर के रिहायशियों का कहना है कि हम सदियों से यहाँ के रिहायशी हैं और माल मवेशी चुराना हमारा पेशा है। हमारे 2 बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। दूसरी जानिब भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना मामूल बन चुका है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका है। किसान का हाल खराब है। पंजाब का किसान और काश्तकार मुश्किल में है। वज़ीर आज़म फौरन मुश्तरका वफाक कौंसिल का इजलास बुलाएं, इस मसले को हल करें। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, सिंध में जाकर अस्पताल देखें और लोगों को बताएं। ये तो कहते हैं हमने सिंध को खंडर कर दिया। कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक ग़स्ब किए जा रहे हैं। भारत में अक़लियतें ख़ुसूसन मुसलमान और सिख गैर महफूज हो गए हैं। आलमी ताकतों को भारत की हटदर्मी पर खामोश नहीं रहना चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मिशाल मलिक ने कहा, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसकी जहनीत का आकास है और आलमी सतह पर भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। भारत मुसलमानों के मफादात पर हमला करता है। भारत पहले से ही इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस है। पेशावर में हाफिज तैमूर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में 10 लाख फौज है, वहाँ उसके बावजूद कश्मीरी उससे संभलते नहीं। उन्होंने झूठ का ऑपरेशन किया। साफ बात है कि इसमें भारतीय एजेंसी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। MBBS की जारी डिग्री के बावजूद उम्मीदवार मेडिकल अफसर का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर गया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेडिकल अफसर के हालिया इम्तिहान में अनीश कुमार को भी कामयाब उम्मीदवार करार दिया गया है। लेकिन जब अनीश कुमार के MBBS की डिग्री शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से तस्दीक कराई गई तो इंकशाफ हुआ कि अनीश कुमार ने MBBS पढ़ा ही नहीं है। मज़ीद क्या तफ़सीलातें जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान उस वक्त बहुत हैरान और परेशान हो गए जब मेडिकल अफसर का इम्तहान हो गया। उनमें जो कामयाब उम्मीदवार है उनकी फहरिस्त जारी कर दी गई। अब उनकी फहरिस्त जारी करने के बाद उनकी जब डिग्री चेक कराई गई तो एक कामयाब उम्मीदवार था अनीश कुमार, उसकी MBBS की डिग्री ही जाली थी, उसने MBBS किया ही नहीं था। और जब रजिस्ट्रार ने खत लिखा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना को तो उन्होंने यही तस्दीक की कि अनीश कुमार ने MBBS नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके मेंबर हैं जुडिशल, उन्होंने उनको मेंबर अपील्स हैं, उन्होंने अनीश कुमार को बुलाया और अनीश कुमार ने वहाँ पर तस्दीक की कि हाँ मुझसे गलती होगी, मैंने जाली डिग्री दी थी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबरान थे हैरान हो गए कि एक बंदा MBBS ही नहीं पढ़ा तो उसने इम्तहान कैसे पास किया। क्या इन्होंने सिफारिश लगाई या इसने कोई रिश्वत दी या इसके कोई अप्रोच की कि जिसने पढ़ाई नहीं है वो कामयाब कैसे हो गया। तो इसके लिए उसको 5 साल के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हर जो कैटेगरी के इम्तहान। बहुत शुक्रिया शकील दानिश, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिना अस्पताल कराची में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद OPD ब्लॉक मैदान जंग बन गया, जिससे एक डॉक्टर सर पर चोट आने के बाद जख्मी हो गया है। इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली, मुतअद्दिद डॉक्टर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट देखिए।
जिना हस्पताल कराची YDA के 2 ग्रुपों में तसादुम के बाइस मैदान जंग बन गया। एक ग्रुप ने ज़बरदस्ती OPD बंद करा दी, जिसके बाइस इंतज़ामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। तसादुम में एक डॉक्टर सर पर चोट आने से जख्मी हो गया। डॉक्टर का कहना था OPD करने के बाइस हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तकरीबन एक हफ्ते से OPDs का बाइकाट था। ठीक है, हम तकरीबन 2 दिन से, कल भी हमने OPDs चलवाई, आज भी हम OPDs चलाने आए तो यहाँ पे कुछ नाम नहाद गुंडों ने OPDs के बाहर के जो गेट्स थे उनको ताला लगाया हुआ था। हमारा यही मौक़िफ़ था, एक हफ्ते से OPD बंद है। हम ये चाह रहे थे, गरीब मरीज़ पता नहीं हर पाकिस्तान के हर कोने से आ रहे हैं, तो एक हफ्ते से वो बेचारे आकर वापस जा रहे थे। एक बेचारे पहले से गरीब गुर्बत में किराया भर के यहाँ पे आ रहे हैं। मरीजों की मुश्किलात के पेश नज़र इंतज़ामिया ने फौरी पुलिस को तलब करके OPD खुलवा दी। अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अदील सम्मो का कहना था, OPD बंद कराने और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। डॉक्टर्स के जो 2 ग्रुप से उसमें जो है तसादम हुआ, हमें बड़ा दुख है, उसको नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हमारी JPMC की OPDs इस वक्त बहाल हैं। OPDs में जितनी जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, फैकल्टी के जो मेंबरान हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब अपना काम बड़े खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। OPD बंद कराने वाले YDA के दूसरे ग्रुप ने डायरेक्टर जिना अस्पताल के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मअतली के ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहरे में वकला, असातिज़ा, डॉक्टर, तलबा, किसान, मजदूर और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की और भारतीय आबी जहरीत के ख़िलाफ़ शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय हठ धर्मी और आबी जहरीत के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पहलगाम का वाक़या भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का घड़ा हुआ ड्रामा है, जिसके बाद सिंतास माहदे की मअतली खुला ऐलान जंग है। भारत पाकिस्तान की ज़राअत और सनत को तबाह करने की नापाक कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन हम उसके हर अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी मुस्लिम लीग भारतीय हठ धर्मी और प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ मुल्क गीर तहरीक का आगाज़ कर चुकी है और कौम को मुत्तहिद और बेदार किया जाएगा। हम पहलगाम हमले में इंसानी जानों के ज़िया की मज़म्मत करते हैं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हारिस डार ने कहा, पहलगाम का जाली ड्रामा मोदी हुकूमत की उस साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद सिंतास माहदे को ख़त्म करके पाकिस्तान के पानियों पर कब्ज़ा जमाना है। माजी में भी भारत ने दरियाओं पर गैर कानूनी डैम्स बनाकर पानी रोका, अब एक बार फिर इसी रविश पर गामजन है। सदर किसान लीग जुल्फ़िकार ओलख और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत की आबी जहरीत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लें और भारत को ख़ित्ते का अमन बर्बाद करने से रोकें। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि वो कौमी मफाद और अवामी जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए भारत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दाम करे, क्योंकि अब खामोशी या मसलहत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। वापस आएंगे ब्रेक। वेलकम बैक। अहम खबर से भी आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद ख़ित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर को फौरी बंद करने की सिफारिश, पहलगाम हमले के तनाजुर में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इज़हार किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को ऐलान करदा भारतीय इक़दामात का जायज़ा लिया। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात को एक तरफ़ा गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। कौमी सलामती कमेटी का भारतीय आबी जहरीत पर सख्त रद्द-ए-अमल, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार दी गई है। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामी जारी कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद ख़ित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश, पहलगाम हमले के तनाजुर में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इज़हार किया गया है। कौमी सलामती कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को ऐलान करदा भारतीय इक़दामात का जायज़ा लिया है। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात को एक तरफ़ा गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया है। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, जबकि कौमी सलामती कमेटी का भारतीय आबी जहरीत पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिशें
नाकाबिले कबूल करार दे दी गई हैं। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसका एलामिया अब जारी कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख साहब ने। आमिर साहब, बताइएगा, एलामिया जारी कर दिया गया है और किसी भी मुहिम जोई का, चाहे वो आबी दहशतगर्दी हो या सरहदी मुहिम जोई हो, मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया गया है। क्या कहेंगे सर? आज जो इस वक्त जो सियासी और असली क़यादत का जो इजलास हुआ है, कि तो पहली बात तो यह कि भारत ने जो इक़दाम किए वो एक एकतरफा इक़दाम थे, बगैर किसी तहकीक के जो है ना उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए और फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने बाद ऐसे फैसले कर दिए जिससे आम आदमी जो है ना वो मुतासर होते। लेकिन पाक फौज और सियासी क़यादत ने हमारी जो है ना वो भरपूर इसका जवाब दिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अभी ख़त्म हुआ है। काफ़ी तवील इस पर बातचीत हुई है तमाम सूरत हाल पर, कश्मीर और इसके अलावा वाघा बॉर्डर और दीगर जो सिंतास माहिदा है। तो ये मैं कल भी कह चुका हूँ कि सिंतास माहिदा जो उसकी 12/4 शिक है, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि भारत यकतरफा तौर पर किसी सूरत ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। इसमें दोनों की रजामंदी चाहिए और लिखत में चाहिए, यानी इसको रिटर्न में आप जो है ना जब तक दोनों तरफ से इसकी जो है ना वो रजामंदी जाहिर नहीं होती उस हद तक जो है ना जरा वो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसका रिएक्शन दिया है कि इसको जो है ना वो बॉर्डर जो है ना वो जो वाघा बॉर्डर है वो फौरी तौर पर बंद कर दिए हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी आड़ में भारत कोई भी शरारत कर सकता है। जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह से राह से जो सोशल मीडिया नेटवर्क मुंसलिक है राह से, वो जिस तरह से इस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जैसे वाक़या होते ही उन्होंने इस मामले को जो है ना वो पाकिस्तान से जोड़ दिया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और एरिया भी बॉर्डर से कुछ 400 किलोमीटर दूर है। तो इसके बावजूद वो जो उनके सोशल मीडिया नेटवर्क हैं जो राह से मुंसलिक हैं वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसी तनाजुर में जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला किया कि वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये एक रास्ता है जहाँ से सियाहों की एक बड़ी तादाद आती है और ये उसी तनाजुर में किया गया कि कहीं ऐसा कोई वाक़या जैसे पहलगाम में पेश आया, सियाहों को निशाना बनाया गया, उसको निशाना ना बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। आमिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हैं। आम खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है। एलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कुछ